Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome back to the world of chemistry. Today we will discuss about more the properties of an atom. Now first we look at what is inside the atom. As you know that atom is the smallest and indivisible particle of an atom, an element which cannot be broken down further into different pieces. Inside the atom, you should find three subparticles: electron, proton, and neutron. We will discuss about these three subatomic particles. So, all the atoms are made up of three atomic particles: proton, neutron, and electron. We call these smaller particles as the subatomic particles. Protons and neutrons are tightly packed together in the center of an atom. These both subparticles form the nucleus of an atom. An electron revolves rapidly around the nucleus. Means in the first stage you should know what are the places of these subparticles inside the atom. Means which things you should find inside the atom. There are two places. One is the nucleus and other is the orbit or the shells. Inside the nucleus, basically you should find the two subparticles. One is the proton, which is the positive charge particle, and other one is the neutron, which comes from the word neutral, means the thing which are partial and having not any side, either positive or negative. That particle is known as the neutron. So inside the atom we find a nucleus, which is the center of activities. In the nucleus you should find the two important subatomic particles. One is the proton, which has positive charge, and other is the neutron, which has no charge. And the third particle is the lightest particle, which you should find around the nucleus, means which is not present inside the nucleus but it is present around the nucleus in the orbits or in the shells. आपको मेरे ख्याल में ये क्लियर हो चुका होगा कि एटम के अंदर उसके तीन सब पार्टिकल्स होते हैं. एटम तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन उसके भी छोटे जो सब पार्टिकल्स होते हैं, ज़र्रे होते हैं, उनको हमने डिवाइड किया है विद देयर नेम्स: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन द लाइटेस्ट पार्टिकल, हल्के में हल्का होता है, देयरफॉर इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. ओके, फिर न्यूक्लियस में आपको मिलता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन की कोई चार्ज नहीं होती. ओके, तो दीज आर द बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं. ये हर एटम के तीन particles लाजमी होते हैं. I already told you about the atoms sometimes called elements. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है. तो इन सब के तीन तीन पार्टिकल ज़रूर होंगे. वो सब पार्टिकल क्या होंगे? हर इलेक्ट्रॉन, अगर ऑक्सीजन है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके प्रोटॉन्स होंगे, उसके न्यूट्रॉन्स होंगे. तो अगर वो क्लोरीन है, उसके भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके भी प्रोटॉन्स होंगे और उसके भी न्यूट्रॉन्स होंगे. तो every element, every atom has three subparticles: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. आपको उनकी जगह का पता होना चाहिए कि उनकी प्लेस क्या होती है. जिस तरह 12 एक डिजिट है, तो 12 में नंबर 2 स्टैंड्स फॉर वंस
and 1 stands for tens. तो मिलाकर हम उसको क्या कहते हैं 12. तो उनकी पोजीशन होती है, आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में रहते हैं तो उनकी प्लेस होती है. तो इसी तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो प्लेस होती है वो न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस आप बायो में भी पढ़ चुके हैं. इट इज़ द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़. सारा कंट्रोल किसके पास होता है, उस न्यूक्लियस के पास होता है. यही कुछ एटम्स के अंदर भी होता है कि सारा कंट्रोल किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास. इन न्यूक्लियस इज वेरी टू इम्पॉर्टेंट particles. One is the proton, which has positive charge, and neutron is a neutral charge, has zero charge. और उसका जो बाहर आपकी चीज़ें रिवॉल्व कर रही होती हैं उस एटम के बाहर, दैट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रॉन, जिसकी चार्ज क्या होती है, नेगेटिव होती है. हर एटम इन द स्टार्टिंग वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है. ठीक है, उसकी चार्जेस जो होती हैं वो बाद में बनती हैं. नाउ वी डिस्कस मोर अबाउट द एग्जाम्पल. तो हेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन. ओके, द कार्बन एटम इज कंसिस्ट ऑफ 6 proton, 6 neutron and 6 electron. Now look at the colors which are present here, the subparticles. Yellow color, if you see the yellow color has minus charge, means all the electrons have negative charge which are represented by the yellow color. Okay, now these are the orbits which I told you earlier कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऑर्बिट्स में मूव करते हैं. ये गोल जो आपको you see the circles or the orbits or the shells, इनको हम केमिस्ट्री में इन नामों के साथ जो है वो कॉल करते हैं. तो उसमें अगर आप गोल सर्किल के अंदर देखेंगे you should see the minus charge, means electron is a subparticle which has negative charge. Now come to the inside the nucleus. Inside the nucleus you should find the two important subatomic particle. One is the proton. Proton has positive charge. If you look at the green color shows the number of proton, and proton has positive charge. And the third one is the neutron, and you can see there isn't any charge on the neutron. Electron have negative charge, proton has positive charge, and neutron does not have a charge, or it is charged less a subatomic particle. Okay, so this is the atom of an carbon, in which consists of 6 proton, 6 neutron and 6 electron. Actually you are not getting confused with the 3 number. If you plus all the 3 numbers you can't get the number 12. Actually the number of proton is always equal to the number of electron, therefore these are both considered as a 1. Okay, so atomic mass or the mass number of the carbon is 12, and 12 is divided in such a way that proton is 6, neutron is 6. If the proton are 6, the same electrons are revolve around the nucleus. जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. Mass number or the nucleon number. Nucleon number of an atom is the total mass of the proton and neutron in an atom. Mass number basically is known as the nucleon number. Nucleon number means the subparticles which are present in an atom inside the nucleus are the 2 subatomic particles. One is the proton and other one is the neutron. If you look at inside the atom, the nucleus is consist of 2 particles. One is the proton and other is the neutron.
these two number actually made the nucleon number are the mass number of the element, the mass number of an atom. So the nucleon of an atom is the total mass or the sum of proton and neutron in an atom. Sum means when you combine together number of proton and number of neutron, you should get the mass number of that atom. कैसे आपको मिलेगा? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, इफ़ आई गो बैक हेयर, कार्बन को मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी कि कार्बन का एटॉमिक मास या मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर जो होता है वो 12 होता है. अब 12 को हम जो है डिवाइड करते हैं, मीन्स अगर दो हिस्सों में, तो 1 इज हैज़ 6 प्रोटॉन और 6 उसके क्या होते हैं, न्यूट्रॉन. अगर हम 6 और 6 को प्लस करते हैं, सम करते हैं, तो वो उसका क्या नंबर होता है, मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर. क्योंकि ये दो चीज़ें जो आप देख रहे हैं ऊपर जहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली क्या होता है, इसका मास होता है. जिस तरह हमारा कोई ना कोई हम वेट करेंगे तो कोई ना कोई मास होगा, कोई वज़न होगा. कोई बॉल है उसका कोई ना कोई वज़न होगा. हम दुकान पर जाते हैं, आटा लेते हैं, अगर 5 kg कहेंगे तो 5 kg उसका क्या होता है, मास होता है. ओके, हम यहाँ पर वेट इसलिए बार बार नहीं कह रहे क्योंकि वेट ज़मीन पर जो होता है वो चेंज होता है, और अगर हम एयर में चले जाएं, हम स्पेस में चले जाएं, तो वो कम हो जाता है क्योंकि हम फ्लोट करना शुरू हो जाते हैं. तो मास कभी भी किसी का चेंज नहीं होता. बॉल अगर ज़मीन पर बॉल है तो वो आसमान पर भी बॉल ही रहेगा. ठीक है, तो दैट इज़ द मास. वो किस चीज़ से बना हुआ है. जहाज़, यहाँ पर भी जहाज़ है तो ऊपर भी क्या होगा, जहाज़ ही होगा. लेकिन जो चीज़ कम हो जाती है वो उसका वेट होता है. तो यहाँ पर इसलिए हम बार बार फोकस करेंगे मास नंबर, मास नंबर. तो मास इज़ द सब्सटेंस थिंग, द सब्सटेंस इज़ मेड ऑफ. वो चीज़ बनी हुई किसकी है, उसे हम कहते हैं मास. तो ये जो भी मैंने आपको न्यूक्लियन नंबर और मास नंबर के बारे में बताया है वो एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर होता है. और कौन से दो पार्टिकल्स बनाते हैं, वन इज़ द प्रोटॉन एंड अदर इज़ द न्यूट्रॉन. उन दोनों को प्लस करने से, सम करने से, टोटल करने से आपको जो नंबर मिलता है, दैट नंबर इज़ नोन एज द न्यूक्लियन नंबर. न्यूक्लियन नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए. इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, विद द कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट ए. द न्यूक्लियन नंबर also called as mass number. As I told you before this, the nucleon number is also known as the mass number. This is because the mass of atom depends upon the number of proton and number of neutron in an atom's nucleus. The mass of electron is an atom is said to be negligible. कोई उसका असर जो है नहीं होता. निग्लिजिबल मीन्स विच कैन नॉट बी काउंटेबल. ओके, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमेशा 3 पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हम काउंट कितने करते हैं, 2 पार्टिकल्स के टर्म वेट को काउंट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनका मास जो होता है वो निग्लिजिबल होता है. द मास नंबर अगर हम फॉर्मूले के थ्रू शो करेंगे तो मास नंबर किसके बराबर होता है, इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हेयर आई मेक द मिस्टेक, मुझे न्यूट्रॉन लिखना था, शायद प्रिंटिंग में मुझसे मिस्टेक हो गई है. तो दिस इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नॉट इलेक्ट्रॉन. तो ये मिस्टेक आप करेक्ट कर लीजिएगा. आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस. तो मास नंबर किन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. बेटा अगेन आई सेड हेयर इज़ मेड अ मिस्टेक बाय मी. मुझे यहाँ पर न्यूट्रॉन लिखना था जो कि मैंने गलती से इलेक्ट्रॉन लिख लिया है. आई करेक्टेड लेटर ऑन.
Here is another example. Nucleon number of organ is total number of organ is 21. ठीक है, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड मीन्स डिवीजन नहीं, दो हिस्सों में तकसीम करते हैं कि प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे इन द न्यूक्लियस। ये जो सर्किल आपको शो किया गया है इसमें ये बताने की मैंने कोशिश की है कि ये गोल इज़ a round thing is known as the nucleus, which is known as the nucleon. न्यूक्लियन नंबर में आपके पास 10 जो है वो प्रोटॉन्स हैं और 11 आपके पास क्या हैं, न्यूट्रॉन हैं। तो इससे पहले जो एग्जांपल हमने पढ़ी थी उसमें तो दोनों चीज़ें इक्वल थी, 6 प्रोटॉन थे, 6 जो है न्यूट्रॉन थे। लेकिन यहाँ पर जो भी एडिशनल नंबर होता है, ज़्यादा नंबर होता है, वो हमेशा किसके पास चला जाता है, न्यूट्रल के पास। जो चार्ज लेस आपका सब पार्टिकल होता है, ज़्यादा नंबर हमेशा उसके पास चला जाता है। पीरियोडिक टेबल में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको दिए जाते हैं, वेट भी दिए जाते हैं, न्यूक्लियन नंबर भी दिए जाते हैं और आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर भी आपके पास मौजूद होते हैं। तो उसको आप क्या करते हैं कि 21 में से आप 10 अगर माइनस करेंगे तो आपके पास खुद ब खुद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो आ जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल है ऑर्गन की। तो ऑर्गन हैज़ 21 मास नंबर, न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियस में अगर इन दोनों को मैं प्लस करूँगी तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, न्यूक्लियन का 21 हो जाएगा। यहाँ पर एक और आप अगर देखेंगे डायग्राम तो उसमें ए, जेड और एक्स आपको दिखाया गया है। ए जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ द मास नंबर, द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर ए। एक्स रिप्रेजेंट एनी एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स हमने उसको सपोज किया है कि एक्स इज़ एन एलिमेंट जो कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, जिसके दो जो हैं इम्पोर्टेंट हिस्से होते हैं। वन इज़ द नंबर ऑफ न्यूक्लियन एंड सेकंड इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसे हम एटॉमिक नंबर, दोनों के दो दो नाम हैं। मास नंबर इज़ नोन एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियन, एटॉमिक नंबर इज़ नोन एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की तादाद जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं 10 है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँगी तो एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्गन। तो एक्स की जगह हम उसकी सिंबल लिखेंगे AR, ठीक है। ए की जगह हम उसका वेट लिखेंगे 21, ओके। और जेड की जगह हम उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे जो कि 10 है, सही है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन का ये तरीका होता है कि आप उसके मास नंबर और एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी कम टू द अनदर property of an atom, that is the proton number and atomic number. As I told you, in every periodic table you should find the two numbers with their symbols. One is the atomic number, mass number, and nucleon number, and second is the proton number and atomic number. Proton number is basically based on the number of protons which are present inside the nucleus, and that number is actually electron also carries. Electron also has the same number which is the proton. If protons are 6, the electrons are also 6. If protons are 12, the electrons are also 12. If the protons are 10, then the same way the electrons are also having the 10 number. That number is actually known as the atomic number, atomic number of an element. So the atomic number of element, what it shows, it always shows the number of proton in an element.
The proton number of an atom refers to the number of protons in an atom. The proton number is also called as the atomic number. It is represented by the symbol Z. Since atoms are electrically neutral, the proton number can also be tell as the number of electrons in an atom. I told you before this that number of proton is always equal to the number of electron. दो चीज़ों पर हम फोकस करते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वो आप बस समझ जाइएगा कि जितने प्रोटॉन हैं आप बगैर हेजिटेशन के आप कह दें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे. अगर 10 हैं प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन आप बिल्ला झिझक बगैर सोचे आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे. अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन में और प्रोटॉन 6 हैं तो हम ऑलवेज वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, हैव द सेम नंबर 6. ऑक्सीजन का एटम है, टोटल मास क्या होता है उसका 16 होता है, तो 8 उसमें प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं. इनको प्लस करेंगे तो न्यूक्लियन नंबर आ जाएगा. लेकिन प्रोटॉन नंबर अगर 8 है तो उसका जो बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली कितने होंगे, दे आर एट इन नंबर. तो हेयर आई आल्सो राइट दिस that the number of proton can also tell us the number of electron in an atom. Here I take an example of the nitrogen gas. Nitrogen gas has a weight 14. If we divide the 14 in two equal parts, the 7 are the protons and 7 are the neutrons. And if 7 are the proton, it means automatically it has 7 electrons. So the number of proton and number of electron is always same in an atom, which is known as the atomic number or the proton number. Here I give you the two examples. One is the helium and other is the aluminium. As I show you before this picture in which I represented the nucleon number and the atomic number with the letters A, Z and X. ठीक है, मैंने आपको कहा था सेंटर में X लिखा हुआ आपको नज़र आया था. X कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम है और दूसरी तरफ हीलियम है. इन दोनों की हमने सिंबल रखी तो ये क्या हो गया, एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है. X को हटाकर हमने हीलियम कर दिया. सेकेंड एग्जाम्पल में हमने X को हटाकर एल्यूमिनियम कर दिया. ठीक है, ऊपर हमने लिखा है A. ठीक है, A रिप्रेजेंट द न्यूक्लियन नंबर. न्यूक्लियन नंबर मीन्स सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है. एल्यूमिनियम का वेट है 27 और हीलियम का वेट है 4. अगर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में तो 4 को इजीली हम दो हिस्सों में कर सकते हैं कि 2 उसके प्रोटॉन होंगे और 2 उसके न्यूट्रॉन होंगे. ठीक है, और यहाँ पर अगर हम एल्यूमिनियम में देखेंगे तो इसका मास है 27 और इसका नंबर क्या होता है 13. 13 क्या हो जाएगा आपका जो है प्रोटॉन नंबर हो जाएगा और 27 में से 13 आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो फिगर आएगी वो होगी 14. तो न्यूट्रॉन के पास कोई ना कोई न्यूट्रल होता है क्योंकि चार्जलेस होता है, तो जितने भी एडिशनल एटम्स होते हैं वो न्यूट्रॉन के पास जा सकते हैं. तो ये दोनों नंबर ऐसे होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद होते हैं. ओके, तो दिस इज़ द न्यूक्लियन नंबर भी यहाँ पर मौजूद है और जो है प्रोटॉन नंबर भी है. ठीक है, न्यूक्लियन नंबर इज़ नोन एज द मास नंबर एंड प्रोटॉन नंबर इज़ नोन एज द atomic number. Now we come to the another property of an atom, that is what is an ion. Ion. During the chemical reaction, atoms of an element may gain or lose electron to form the charged particles called ions. अब इतनी देर से we are going to discuss about the electron, proton, neutron.
अगर जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, अब तब तक आप आयंस का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं गेन कर सकते, क्योंकि बार बार इतना रिपीट करते हैं हम कि सब पार्टिकल्स होते हैं एटम के, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्योंकि यही एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेकिंग द आयंस। क्योंकि हर एटम, एज आई टोल्ड यू बिफोर दिस, इज़ न्यूट्रल। हर एटम अगर आपके पास स्टार्टिंग में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है तो उसके पास एक चार्ज आ जाती है, आइदर इट बिकम पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव या हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये चार्ज दो ही हैं इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करती हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स may gain or lose electron to form the charged particles called ion. Ion is an electrically charged particle formed when an atom gains or loses the electron. जब एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलता है तो हमेशा उनके अंदर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जिस तरह एक दोस्त दूसरे के साथ आप बात करते हैं तो उनकी बॉन्डिंग हो जाती है। आप कहती है, आप ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि इट हैज़ बॉन्डिंग, हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है क्योंकि वो एक दूसरे को समझते हैं। तो इसी तरह एक एलिमेंट की बॉन्डिंग भी लाजमी होती है। उस लाजमी होने के लिए क्या करते हैं, आप कुछ ना कुछ चीज़ें उनको देते हैं, वो आपसे कुछ लेते हैं। आपने कोई गिफ्ट उनको दिया, उसने आपसे लिया। तो यही चीज़ें एक एटम के अंदर भी होती हैं बॉन्ड की फॉर्मेशन में, कि कोई एटम है उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दिए, क्योंकि रिवॉल्व करने वाली चीज़ क्या होती है, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो तो बाहर निकल नहीं सकते, वो तो हैवी होते हैं। तो लाइट पार्टिकल क्या होता है, दैट इज़ एन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को आप जो है आसानी के साथ लूज़ कर सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम ने लूज़ कर लिया तो देने वाला हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और जिसने लिया तो वो क्या कहलाया जाएगा, नेगेटिव। तो एक ने लॉस किया तो इट बिकम्स द पॉजिटिव, और एक ने गेन किया तो इट बिकम्स द नेगेटिव। तो लूज़र इज़ द पॉजिटिव एंड गेनर इज़ द नेगेटिव। लूज़र, वैसे हम आम ज़बान में लूज़र को अच्छा नहीं समझते, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर लूज़ करने वाला मीन्स इसके पास इतने हैं, इतना पैसा है कि वो दे रहा है, खुदा उसकी तादाद फिर भी बढ़ाता जा रहा है। तो यहाँ पर ये होता है कि देने वाला जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा और लेने वाला हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जिसने दिया that has the positive charge which has the positive ion, और जिसने लिया तो वो क्या बन जाता है, नेगेटिव आयन। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्योंकि दे देते हैं जल्दी से, इसीलिए वो पॉजिटिव चार्ज्ड होते हैं। और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं जो कि गैसेस हैं या लिक्विड्स हैं, वो मोस्टली क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि वो लेते हैं। तो मेटल्स आर द पॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर द नेगेटिव। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का मेरे ख्याल में अब समझ में आ गया कि जो देता है अल्लाह उसको ज़्यादा देता है, तो इसीलिए वो पॉजिटिव होता है। जो लेता है वो हमेशा ही लेता रहता है, इसीलिए वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो लूज़र्स आर द पॉजिटिव एंड जो गेनर्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। तो लूजेस इलेक्ट्रॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड गैनिंग इलेक्ट्रॉन form the negative ion. Loses electron form the positive ion and gaining electron forms the negative ion, जिनको हम आम ज़बान में कैटाइन और एनाइन कहते हैं, जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे इन आवर जो आने वाले चैप्टर्स हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर। यहाँ पर मैंने आपको दो जो हैं
कोशिश की है कि समझा सकूं कि पिक्चर्स हैं। यहाँ पर आप एरो देखेंगे कि इसकी आउटर मोस्ट फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देखेंगे कि शेल्स बने हुए हैं। ओके, शेल्स जो हैं वो 3 हैं। एक सेंटर में येलो कलर का जो है वो न्यूक्लियस है, और ब्लू कलर के जो आपको बॉल्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली द इलेक्ट्रॉन्स। आखिरी शेल में अगर आप देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, गर्दिश कर रहा है, इसको हम रिवॉल्व कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वी से इट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर देगा, किसी को दे देगा, ठीक है, तो इट बिकम्स द लूज़र। और देने से इसके पास चार्ज किया जाएगी पॉजिटिव, और वो शेल अगर आप सेकंड पिक्चर में उस एरो, रेड एरो के सामने ही देखेंगे तो उसका जो तीसरा शेल है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि उसने किसी की मदद कर दी देकर। तो उसने एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक ही दे दिया, तो उस पर चार्ज या आयन क्या बन जाएगी, +1। अगर आप सेकंड एग्जाम्पल में देखेंगे तो मैग्नीशियम की एग्जाम्पल है, तो उसके आखिरी शेल में अगर आप देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अगर आप रेड एरो की तरफ जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर उसने किसी को दे दिए, किसी की हेल्प कर दी, लूज़ कर दिया, और जिसको 2 की ज़रूरत थी उसकी उसने मदद कर दी, तो व्हाट हैपन्स, मैग्नीशियम बिकम्स द आयन हैव 2 आयन्स उसके पास आ जाएंगे, तो वो +2 हो जाएगा। तो यही एक्चुअली उनकी क्या होती है, कंबाइनिंग पावर होती है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि वो वैलेंसी होती है। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसकी चार्ज क्या हो गई, +1। सेकेंड एग्जाम्पल में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ही लूज़ हो गए, तो इट हैज़ +2 चार्ज। ये इनकी वैलेंसी भी एट ए टाइम कहलाई जाएगी, और इनको हम आयंस भी कहते हैं। पहले वो न्यूट्रल था, किसी के साथ उसने कोई रिएक्शन नहीं किया, कोई बॉन्डिंग नहीं की। जब बॉन्डिंग करेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। व्हेन इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स द पॉजिटिव आयन। जिसने इससे लिया है वो बिकम द नेगेटिव आयन। ठीक है, 1 है तो 1 आयन, 2 गेन लॉस किए तो उसकी जो जितने करते जाएगा वो उसकी चार्ज बनती जाएगी, या वो उसके आयन्स बनते जाएंगे। लास्ट एग्जाम्पल दोबारा मैंने यहाँ पर आपके लिए रखी हुई है कि चार्ज ऑफ एन आयन। यहाँ पर देखें 3-4 एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनकी +1 चार्ज होती है। हाइड्रोजन है, लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम, सिल्वर, कॉपर, इन सब के पास देखें +1 चार्ज है, क्योंकि ये क्या करते हैं, लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेड, बेरियम एंड आयरन है। अगर इसके ऊपर आप देखेंगे, क्योंकि मैथ्स में तो हम 1 लिखते ही नहीं हैं, लेकिन 2 हम लिखते हैं, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दिए, तो उनकी वैलेंसी क्या बन जाती है, 2 बन जाती है, क्योंकि उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। फिर आ जाते हैं +3, कौन से एलिमेंट्स होंगे, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, तो इनके ऊपर आप +3 देखे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ किए। अब आपके पास आ जाती है नेगेटिव आयन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इन्होंने किसी से एक एक लिया होगा तो क्या कहेंगे, दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन। उसके नीचे अगर आप देखेंगे ऑक्साइड्स हैं, या ऑक्सीजन है, या सल्फाइड है, तो उन्होंने 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन। तो गेनर इज ऑलवेज नेगेटिव एंड लूजर और ऑलवेज द पॉजिटिव। लूजर्स क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन, और जो गेन करते हैं वो क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयन। तो दीज is today we will talk about the different properties of the atoms, including inside the atom,
nucleon number, proton number, and last one is the ions. Okay, the having charge, positive or negative, is known as the ion. I hope you will understand it. If still you have the queries about this, you may ask me in my after that. Okay, have a good day and keep repeating your lectures and read at least your book and go through your books, because without reading books you cannot able to understand the any subject, even the chemistry too. Have a good day.